Hello students, we are going to start the electromagnetism of class 10th. In very first, the Ørsted experiment on magnetic effect of current. So we have to need what? Compass needle, and in first case we put compass needle below the circuit. Okay, and it is matching the compass north pole to the geographical north pole, and compass south pole to the geographical south pole. So you can see at here that north pole and south pole both lie at the circuit, and we show the compass by dotted line. This dotted line represents that the compass has kept below the wire. Okay, when no current flow, no deflection. As you can see that there is no deflection in the needle, and when we just start to flow the current, then we watch that there is the deflection in the needle, and north pole shift towards the west and south pole shift toward the east. Okay, when we just change the polarity of the circuit, that means positive terminal at the other side and negative terminal at the other side. So when we change the flow of direction of current, then we find that the north pole shift towards the north and south, west and east. In this case, when we change the direction of flow of current, then north pole of needle shift toward the east. Okay, now the second the conclusion is what? If direction of current change, then polarity of the compass needle will also be changed. Now compass needle put above the wire, तो पुटिंग अबव द वायर हम इसको डॉटेड लाइन से शो नहीं करेंगे, पूरा एक कंप्लीट सर्किल से शो करेंगे. और जब करंट फ्लो नहीं करेंगे तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है निडल का, वो इस वायर की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा. ओके, व्हेन वी सप्लाई करंट to this, then we find that the north pole of this needle, the north direction that shows by the needle, is shift toward the east. And when we change the direction of current, then what happened? The north pole shift toward the west. So by this, the Ørsted find that the electric current having magnetism. Now from the straight wire, when we start to flow the current of in a straight wire, then we find some magnetic line we received at here. So when we increase the current, then magnetic lines become dense. तो ये मैग्नेटिक लाइंस इस बात पर डिपेंड करती है कि फ्लो ऑफ करंट कितना है, मतलब कितने एम्पियर का है. जितना ज़्यादा एम्पियर का करंट हम फ्लो इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही मैग्नेटिक लाइन इसकी एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मिलती हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन कंडक्टर, एंड द लाइन डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, और जब कभी भी हम करंट को, यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर करंट को फ्लो करेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब कभी भी डाउनवर्ड करंट को फ्लो करेंगे तो उसका करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा. फर्दर, राइट हैंड थंब रूल, अगर हम किसी भी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ें, ठीक है, तो ये जो थंब है ये शो करेगा कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में, और ये जो फिंगर्स जो रैप्ड अराउंड द कंडक्टर है ये शो करेंगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को. सो इफ़ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब points in the direction of flow of current, then the fingers encircle the wire in the direction of magnetic field lines. Okay, यानी कि अगर ये हमारा एक कंडक्टर है और इससे हम करंट को फ्लो करें, तो इसके चारों तरफ जो कोसेंट्रिक फॉर्म में जो सर्किल मिलेंगे मैग्नेटिक लाइंस के, उसके डायरेक्शन को अगर हम उंगलियों के डायरेक्शन से देखें तो इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा वो ये होगा. ठीक है, अब अगर हम लूप की बात करें तो एक लूप में किस तरह से जाता है बेटा, तो जब इस लूप में से हम करंट को फ्लो करेंगे तो ये करंट चला है और इधर से वापस आ रहा है. ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे करंट वापस लौट रहा है. तो इसमें हम बस एक काम ध्यान रखना, हम नहीं समझे कि ये लूप है.
वी थिंक इट इज़ एक स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट अपवर्ड जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। अगर डाउनवर्ड आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये आएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से लाइन इसके अंदर जाती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और ये वाला पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लॉक रूल, अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसका नॉर्थ पोल कहलाएगा, और अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो हम उसको साउथ पोल कहेंगे। नाउ मैग्नेटिक ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर हम किसी वायर को इस तरह से इसकी कॉइलिंग करें कि उसके डायामीटर से ज़्यादा इसका लेंथ हो तो हमको एक सोलेनॉइड मिलेगा, ठीक है। अब जब हम इसमें करंट को फ्लो करेंगे तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होगा जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर इसमें हम एक सॉफ्ट आयरन कोर की पीस को रख लें तो इससे मैग्नेटिज्म और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाएगा कि इसमें जो है एक तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम हो जाएगी। पोलैरिटी की अगर हम बात करें बेटा तो करंट जो है इस तरफ से जा रहा है, आप देखेंगे, और ये पीछे से होता हुआ फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो टूवर्ड्स इस तरफ होगा और साउथ पोल इस तरफ होगा। केस 2 में, क्योंकि ये देखो ये कैसे जा रहा है, ये एक एंटी क्लॉक वाइज इसके करंट का फ्लो है, और जब कभी भी एंटी क्लॉक वाइज फ्लो होगा तो इधर होगा। यहाँ पर अगर इसकी पोलैरिटी चेंज करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉक वाइज होगा। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो एक कंडीशन ये हुई कि हम इसको आगे से कॉइल लेकर फिर पीछे ले गए। दूसरी ये है कि हम केस थर्ड ये है बेटा कि हम इसके पीछे से लेकर आ रहे हैं फिर आगे ला रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में इसका नॉर्थ पोल, क्योंकि ये क्लॉक वाइज हो जाएगा तो ये इधर रहेगा, और अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो इसका नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये आपका यहाँ ही ख़त्म होता है।